Good morning. This is Sonia Mathur, Associate Professor in Chemistry, Government JDP Girls College, Kota. In my today's topic of BSc Part 3, Paper 1, Chapter Organometallic Chemistry, in continuation to my previous lectures, today I will be discussing alkyls and aryls of lithium. Lithium forms a large number of organometallic compounds. Alkyls and aryls of lithium are extensively used as alkylating and arylating agents. Organolithium compounds resemble Grignard reagents in their reactions but are almost 100 times more reactive than them, and hence they are called super Grignard reagents. In our today's topic, we will discuss preparations and properties of aryl and alkyl lithium. The first preparation method is by reaction of lithium metal and allyl and aryl halides. Lithium metal on treatment with suitable alkyl and aryl halide in presence of a solvent gives organolithium compounds. These are few reactions of reaction giving alkyl and aryl compounds. For these reactions, hydrocarbon solvent like hexane, benzene or petroleum ether may be used. Since dialkyl ethers react with lithium compounds, it is not used as solvent in these reactions. The physical state of metal is also very important. The reaction may not even start if the metal is coated with corrosion product. On the contrary, presence of small amount of sodium or use of copper lithium alloy helps in increasing the yield of alkyl lithium. Also in these reactions, alkyl chlorides, bromides and iodides also react satisfactorily. Second method, by metal hydrogen exchange metallation. N-butyl lithium reacts with ferrocene as shown to give compound with butane. Coming over to properties of alkyl and aryls of lithium. Lithium carbon bond has 47% covalent character, due to which they have properties typical of covalent substance like solubility in hydrocarbons or other non-polar liquids and high volatility, etc. The lithium carbon bond is more ionic than magnesium carbon bond. Hence, these compounds are more reactive than Grignard reagent. The first reaction is reaction with air. These compounds readily react with atmospheric oxygen and burn. This reactivity increases in compounds having more LIC, that is lithium carbon bonds. Second reaction with water. Organolithium compounds vigorously react with water to give alkanes. Similar reactions are shown with
hydrogen chloride, primary and secondary amines and alcohols. Next is reaction with halogens. Organolithium compounds decompose to give alkyl halide when reacted with halogens. Reaction with olefinic compounds. Alkyl lithium compounds react with unsaturated compounds to give ionic colored products. Next reaction of alkyl and aryls of lithium is reaction with dienes. Alkyl lithium reacts with conjugated dienes to give synthetic rubber. This reaction is very important reaction commercially and industrially, as it involves the preparation of the synthetic rubber. Here we see how conjugated diene reacts with alkyl lithium in presence of a solvent pentane to form cis-1,4-polyisoprene, which further reacts with alkyl lithium and ether to form trans-1,4-polyisoprene gutta-percha. This is a synthetic rubber. This reaction is not only industrially and commercially important, it is also important from the examination point of view, in which questions from this topic are asked directly or indirectly, that how alkyl and aryls of lithium find use in preparation of synthetic rubbers. So to sum up, today we have discussed in this lecture about the preparation and few of the properties, some of which are very important from the industries and commercial point of view. And to sum up, from the examination point of view, questions can also be asked why alkyl and aryls of lithium are called super-Grignard reagent, or what are super-Grignard reagents, what are their preparation and properties, and so on. डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो बीएससी फाइनल ईयर पेपर 1 यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, जो हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम ले रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में एल्काइल्स एंड एराइल्स ऑफ लिथियम। इसके पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे हैं उसमें हमने नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और एल्काइल्स और एराइल्स ऑफ लिथियम की प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज करी थी। आज इसकी हम रिमेनिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एल्काइल्स ऑफ एराइल्स ऑफ लिथियम इसलिए इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि इन्हें हम सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन लिथियम बॉन्ड है उसमें 43% आयनिक कैरेक्टर है, जो इसकी हाई रिएक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। इसी कारण इन्हें सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स तो कहते ही हैं। और इसके अलावा जहाँ पे ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स फेल हो जाते हैं, वहां हम इनके हेल्प से कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सुपर ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स क्या हैं। अब हम लेते हैं कुछ इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली है कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन। अभी कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको पता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप हो। तो ये देखा गया है कि जब अल्काइल लिथियम कंपाउंड्स इनसे रिएक्ट करते हैं तो वो एक इंटरमीडिएट एडक्ट बनाते हैं जो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें एल्कोहल देता है। और ये हम जैसे कि इन 3 रिएक्शंस में देख रहे हैं कि हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, अल्काइल एल्डिहाइड एंड डाई अल्काइल कीटोन के साथ हमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स मिल रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि कितना इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट है ये रिएक्शन, जिससे कि हम इजीली फॉर्मल्डिहाइड को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं हम, जिसमें रिएक्शन ऑफ एल्काइल लिथियम विद अल्कोहल्स। ये देखा गया है कि अल्कोहल्स के साथ ये रिएक्ट करने पे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देते हैं जो कि हैं एल्केन्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि मिथाइल लिथियम इथेनॉल से रिएक्ट करके हमें दे रहा है प्रोपेनॉल। सो प्रोपेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से ये एल्केन्स हमें प्रोडक्ट मिलते हैं रिएक्शन विद अल्कोहल के साथ। अब है इसका रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि जहां पे भी एल्काइल लिथियम पे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन जरूर पूछा गया है। और इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है कि हाउ एल्काइल लिथियम विल रिएक्ट विद ड्राई आइस। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड। और ये देखा गया है कि एल्काइल लिथियम्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे हमें कीटोन्स देते हैं। ना नेक्स्ट रिएक्शन है जिसमें organometallic compounds are also obtained by the reaction of lithium bromide और iodide। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड हमें मिल रहा है जब इथाइल लिथियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद इथिलीन ऑक्साइड। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्शन करने पे इथिलीन ऑक्साइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें प्राइमरी अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये तो बात हुई कुछ और रिएक्शंस की और प्रॉपर्टीज की। नेक्स्ट हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम के का अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि ये एक टेट्राहेड्रन बना रहा है। चारों लिथियम एटम्स जो है टेट्राहेड्रन बना रहे हैं। ये टेट्रा मिथाइल लिथियम के साथ है। और इसमें आप देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। इसके अलावा उसके 3 बॉन्ड लिथियम के साथ हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन क्या हो गया है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। अब बात आती है कि ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की क्या यूजेस हैं। कुछ जो हमने अभी रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था कि अलग अलग कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन होने पे हमें बहुत ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। तो एक पहला यूज तो यही हो गया कि किस तरह से हम दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को इससे बना सकते हैं। Then simple organolithium compounds, for example, butyl lithium are used as polymerization catalyst. Second, alkyl lithium compounds are used to prepare olefins and cyclopropanes having one more carbon atom than the lithium compounds and sulfonates. Lithium acetylide जो है इसके यूज विटामिन ए के प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से मेडिसिनल फील्ड में भी एल्काइल लिथियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा विटामिन ए ही नहीं, प्लेसिडाइल जो कि ट्रंक्विलाइजर है उसमें भी लिथियम एसिटाइड का इंपॉर्टेंट रोल होता है। देन फिनाइल लिथियम
is used to introduce a phenyl group in organic synthesis. So dear students, इस तरह से हमने 2 लेक्चर में मिला के ये एल्काइल्स और एराइल्स ऑफ लिथियम डिस्कस करा है। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस पे से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा किस तरह से सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, और दूसरे कंपाउंड्स भी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। थैंक यू।